یہ ہے 1998 کا کراچی اور یہ ہے 2025 کا کراچی. ڈفرنس نظر آیا؟ بہت ڈفرنس ہے. لیکن کراچی والی آج بھی یہ کہتے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا. کراچی کا نمبر دوسرا آیا ہے پوری دنیا میں ڈرگز میں. کراچی دوسرے نمبر پر ہے ڈرگز میں. 41% لوگ کراچی کے لوگ گندا پانی پیتے ہیں اور یہ زرداری کے سرکار میں ہو رہا ہے. پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے مطابق کہ زرداری سرکار نے پچھلے 15 سال میں 52.66 کروڑ روپے کا بجٹ ریسیو کیا ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو ہائی وے کا افتتاح کیا جس پر 52 ارب روپے بنانے میں لگے ہیں. اتنے پیسے لگے تو ہائی وے بھی 100 سال تک چلے گی. لیکن یہ کیا ہے؟ خوش آمدید میرے عزیزو. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، بزنس کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے. آج کل کراچی کے بہت مسئلے مسائل ہیں، سندھ کے بہت مسئلے مسائل ہیں، لیکن اس کے پیچھے صرف ایک بندے کا ہاتھ ہے اور وہ ہے زرداری کا سرکار. پچھلے 15 سالوں میں زرداری سرکار نے سندھ کا بیڑا اتنا غرق کر دیا کہ کراچی اور سندھ دیکھنے کے لائق نہیں ہے. کراچی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، آج وہ دنیا میں دوسری نمبر پر آئی ہے ڈرگز کے لحاظ سے. کراچی میں اتنے نشاور بڑھ چکے، اتنے ڈرگز ایڈکشن ہے. تو کیوں آخر کراچی اس طرح بدل گیا؟ کیوں آخر کراچی کا اتنا بیڈ ٹائم آ گیا کہ زرداری کے سرکار بھی فوکس نہیں کر رہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کہ کراچی کو کس نے تباہ کیا، کون سے مافیا نے کراچی کو تباہ کیا، اور سندھ کے پورے سندھ میں پانی نہیں ہے تو وہ کس کے سرکار میں. آئیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں. ہم بات شروع کریں گے، ہم تاریخ میں ذرا پیچھے جائیں گے، تقریباً 15 سال ہم پیچھے جائیں گے. تقریباً 2008 میں جب زرداری سرکار نے سندھ میں کنٹرول اپنا لیا تو وہاں سے کراچی کا بیڈ ٹائم شروع ہو گیا. یہاں پر آج بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں زرداری کا سرکار تو اچھا ہے، لیکن زرداری کا سرکار سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے بالکل خطرے کا حصہ. زرداری نے سندھ اور کراچی کو بیڈ ٹائم، سندھ اور کراچی کو لوڈ شیڈنگ، گندا پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. وہ تو اپنے بلاول ہاؤس میں، جو کہ اربوں روپے کا بلاول ہاؤس ہے کلفٹن میں، وہاں پر تو بیٹھا ہے، لیکن کراچی کے لوگوں کے لیے اور سندھ کے لوگوں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. میرے عزیزو، بات ہم کریں گے 2008 میں، جب 2007 میں کراچی سندھ پر ایک دوسرے وزیر اعلیٰ کا راج تھا تو پیپلز پارٹی نے 2008 کے الیکشن جیت کر سندھ پر اپنا قدم جمایا رکھا، اور 2008 سے لے کر 2025 تک پی 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 نے سندھ کا اور کراچی کا جتنا بیڑا غرق کر دیا، آئندہ 100 سال میں بھی لوگ اس طرح نہیں کر پائیں گے. بلاول تو کہہ رہا ہے کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، لیکن اس نے تو ایک اسکول تک نہیں بنایا. تو 2008 میں جب قائم علی شاہ پی 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 سے پہلا نمائندہ تھا کہ وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بن گیا، تب سے سندھ میں زرداری سرکار کے پاؤں جمے رہے. تب سے لے کر آج تک تقریباً 12.66 ٹریلین روپے کا بجٹ سندھ کے سرکار نے اپروو کیا ہے، لیکن کراچی کو کچھ بھی نہیں ملا. اس میں کراچی کو ملا ہے تو بس گڈھے، کراچی کو ملا ہے تو بس گندا پانی، کراچی کو ملا ہے تو بس سنیچنگ، کراچی کو ملا ہے بس ٹوٹے پھوٹے روڈز، کراچی کو ملا ہے تو بس لوڈ شیڈنگ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا ہے. اس سے تو 1960s کا کراچی بہتر تھا کہ گورے آتے تھے، بیچز جاتے تھے، کراچی سمندر جایا کرتے تھے، وہاں پر سیر سپاٹے کرتے تھے، وہاں پر وہ انجوائے کرتے تھے. The many sides of Pakistan have made it a new fascination for tourists. In the same latitude as California, its gleaming beaches and mild water provide a perfect playground, privacy off the beaten path. Most visitors of the fragile sex avoid a camel ride, but some folks must try everything once. They'll remember this ride
It'll be a sore subject with them for a long time. A smoother ride can be found on the Arabian Sea, where boating and deep sea fishing are excellent. In these historic waters, you feel the exotic spell of a faraway land. But you also feel at home with hosts who love the same sports and recreations. Water is a major उस टाइम का कराची और आज टाइम के कराची में जमीन आसमान का फर्क है. उस टाइम के कराची में क्राइम्स रेट नहीं थे, उस टाइम के कराची में करप्शन था लेकिन इतना ऊपर नहीं था. उस टाइम के कराची के रोड्स अच्छे थे, उस टाइम के कराची में स्ट्रीट लाइट्स थे, उस टाइम के कराची में टारगेट किलिंग्स नहीं थी 1960 में. लेकिन आज के कराची में वो सब कुछ है जो आपके सोच से भी ज्यादा है. कराची का नंबर दूसरा आया है पूरे दुनिया में ड्रग्स के लिहाज से. कराची के लोग गंदा पानी पीते. 41% लोग, जो कि एक शहर जो कि तकरीबन करोड़ों में उसकी आबादी है, और उनके लोग 41% उस पॉपुलेशन गंदा पानी पीते. वहां पर साफ पानी नहीं है पीने के लिए, वहां पर हर जगह गटर्स. लेकिन आज भी ये कहते हैं कि जिए भुट्टो, जिए जरदारी, जिए बिलावल. कहाँ है वो भुट्टो, कहाँ है वो बिलावल के एक रिपोर्ट के मुताबिक 41% कराची के लोग, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है लेकिन ये नहीं कर सकते. ये बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट्स है कराची के लोगों के, लेकिन ये नहीं करते. कराची हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है. कराची हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स पे करता है फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की भी उस पर कोई आंख नहीं है क्योंकि वो खुद ही फॉर्म 47 पर आई है. तो 12.66 ट्रिलियन रुपए का बजट जो 15 साल में कराची सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, उस पर कुछ भी नहीं बना. कराची के रोड्स आप देखें, कराची में मलीर जाए आप, कराची में जहां भी जाए वहां पर कच्चे रोड्स होंगे. कराची में 20 घंटे वहां पर लोड शेडिंग होती है, लेकिन कराची के सरकार, लेकिन जरदारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही. सिंध में तकरीबन 43,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन उस 43,000 गवर्नमेंट स्कूल में 2700 स्कूल्स बगैर टीचर्स के. सिंध इतना बड़ा सूबा है कि 43,000 गवर्नमेंट स्कूल्स है, लेकिन वहां पर 2700 गवर्नमेंट स्कूल बगैर टीचर के पढ़ाई करते. कराची हम न्यूयॉर्क से कंपेयर करते, हम मुंबई से कंपेयर करते. हमारे पास समंदर है बट हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है. कराची में हर एक कदम बाद गटर है, वहां पर बच्चा जाता है, बच्चा गटर के नीचे जाता है, लेकिन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कोई इकदाम नहीं उठाता. कराची के एक शाहराह है जिसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो 2 साल से अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है. क्यों? क्योंकि मेयर कराची और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी तो वहां पर बैडमिंटन खेल रहे, उसको तो कराची का कोई परवाह नहीं. वो तो लैंड क्रूजर, वो तो लग्जरी गाड़ी में जाते घूमते, और वो भी सरकार के खर्चे पर, लेकिन उसको कराची का क्या मतलब. बिलावल के पास 22 लाख के घोड़े हैं, लेकिन उसको कराची का क्या लेना देना है उससे. मेयर कराची दावे करता है कि हमने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाए हैं, लेकिन वो रोड का क्या, उस पानी का क्या जो कि 41% लोग गंदा पानी पीते. जरदारी के सरकार में, जरदारी का सरकार इतना बड़ा है, इतना रोबदार है सिंध में कि सिंध में एक बंदा भी जरदारी के सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता. अगर आप सिंध के अंदरून में जाए तो अंदरून सिंध ठट्टा थरपारकर में पीने के लिए पानी नहीं है. लोग अभी भी सरों पर पानी दूर मीलों से लेकर आते, क्योंकि सिंध की सरकार नहीं चाहती कि हम अपने लोगों के लिए रिलीफ दे. अगर एक सिंधी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा आ जाए तो वो ऐसा लग रहा है कि मैं अमेरिका गया हूँ, क्योंकि सिंध के लोगों ने वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं देखी जो कि और सूबों में है. तो कराची का बेड़ा गर्क कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी ने. इससे तो 1980s का कराची भी अच्छा था. MQM हाँ वो बत्ताखोरी करते थे, लेकिन वहां पर तो सफाई था. ये 1998 का एक वीडियो जरा आप देखें कि 7 दिन में 1 हफ्ता 9 सितंबर 1988 से पहले कोई इस अनहोनी बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर कराची की सैकड़ों शाहराहों, हजारों गलियों और लाखों दीवारों की 41 साल जमाशुदा गंदगी को सिर्फ एक ही हफ्ते में न सिर्फ साफ किया जा सकता है, बल्कि आईने की तरह चमकाया भी जा सकता है.
मगर 9 सितंबर से 16 सपाई, और वो भी MQM के दौर में, अल्ताफ हुसैन के दौर में। अल्ताफ हुसैन भी एक बंदा था, मुहाजिर के लिए आवाज उठाता, लेकिन वो भी टारगेट किलिंग कर रहा था, वो भी एक गुंडा था कराची में, जो कि आज नहीं है। उससे तो 1980s का कराची भेजा है, और ये 2025 का कराची आप देखें। अगर एक बीमार एम्बुलेंस में हो और वो कराची के रोड से गुजर जाए तो वो बीमार एम्बुलेंस में ठीक हो जाएगा, क्योंकि कराची के रोड्स इतने खराब है। कराची में हर दूसरे पॉइंट्स पर स्नेचर खड़े होंगे। तकरीबन 10,000 के जायद स्नेचर कराची में गुम है, लेकिन सिंध के पुलिस, कराची पुलिस कोई भी कदम नहीं उठा रहा। मेयर कराची भी दबादब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं पड़ा। अभी 2025-2026 फिस्कल ईयर के लिए कराची ने 1200 अरब रुपए का बजट पेश किया है। तो कौन जिम्मेदार है कराची का? इन 1200 अरब रुपए बजट में भी कराची के लिए एक पेनी भी नहीं मिलेगा। हलीम आदिल शेख के मुताबिक कि कराची के जरदारी सरकार ने 12.66 खरब रुपए बजट जो पेश किया है, उसमें तकरीबन PPP ने, जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने 1.66 खरब रुपए का करप्शन किया है। 1.6 ट्रिलियन रुपीस का करप्शन किया है बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने। इसमें एजुकेशन के लिए तकरीबन 850 अरब रुपए मुख्तस हुई थी, लेकिन वो भी नहीं मिली। इसमें कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकरीबन 900 अरब रुपए मुख्तस की गई, लेकिन 1 रुपये भी नहीं बना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक हाईवे बनाया जिसका नाम रखा गया जुल्फिकार अली भुट्टो हाईवे, जिसकी तकरीबन कुल लागत आ गई 52 अरब रुपए। और वो हाईवे, इतने पैसे तो खर्च किए बिलावल भुट्टो जरदारी ने, लेकिन वो हाईवे तो 100 साल तक चले। लेकिन भाई मैंने ChatGPT से एक एस्टिमेट लगाया है कि अगर ये हाईवे 38.9 किलोमीटर का है, और मैंने उस ChatGPT में फोन में डाला कि मैं ऐसा हाईवे बना रहा हूँ 38 किलोमीटर का हो, तो उसमें लाइट सब कुछ हो। तो ChatGPT ने बताया, तो ChatGPT ने कुछ आंसर ये दिए कि कम रेट के 70 करोड़ रुपए का अगर 1 किलोमीटर बनाना हो, तकरीबन 2723 करोड़ रुपए लगेंगे। इसमें तकरीबन 27 अरब रुपए पर ये सारा आपका हाईवे बन सकता है। अगर 70 करोड़ पर एक अगर आपने किलोमीटर बनाना है, औसत रेट यानी एवरेज रेट अगर 90 करोड़ रुपए पर अगर 1 किलोमीटर आपने बनाना है, तो तकरीबन ये 35.0 अरब रुपए आप पर इस पर लगाएंगे। 35.0, ये तकरीबन 3501 अरब रुपए इस हाईवे पर बनाएंगे। अगर वो हाईवे 38.9 किलोमीटर का हो, इसमें तकरीबन अगर 120 करोड़ रुपए पर अगर आपने 1 किलोमीटर बनाना है, तो वो तकरीबन 4668 करोड़ रुपए यानी 46.7 अरब रुपए पर वो हाईवे बन सकती है। ChatGPT ने भी बताया कि 46.7 अरब रुपए पर आपका पूरा हाईवे बन सकता है 38.9 किलोमीटर का। लेकिन बिलावल भुट्टो और जरदारी के सरकार ने इसके लिए मुख्तस किए 52 अरब रुपए। तो ये जो 46.7 अरब रुपए ChatGPT के एस्टिमेट के मुताबिक, तो ये बाकी 6 अरब रुपए कहाँ गए? ये बिलावल और जरदारी के सरकार ने अपने पॉकेट में डाले। जरदारी के सरकार में एक ऊन से पाँव काटी जाती है तो उसका कसूरवार, उसका जो मुल्जिम है, वो 24 घंटों में गिरफ्तार होता है। लेकिन कराची में दिन दिहाड़े स्नेचर्स आते हैं, मोबाइल खींचते हैं, मोबाइल लोगों से खींचते हैं और बंदे को मार दे, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ शामिल है। सिंध हाई कोर्ट ने एक बिल पास किया कि सिंध में तकरीबन 43,000 गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन उसमें 2700 स्कूल बगैर टीचर्स के वहां पर बच्चे जाते। और वो स्कूल भी क्या है, आप यूं समझ रहे हो कि वो स्कूल भी एक लेविश स्टाइल के हो गए? नहीं, वो स्कूल सिर्फ खंडरात है, सिर्फ दीवार उन्होंने बनाई है और वहां पर एक बोर्ड है और वहां पर लोग बच्चे बैठते, न पानी है वहां पर, न बुक्स वहां पर मिलते, और वो जमीन पर अब भी जमीन पर बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं और वहां से तालीम हासिल। वो तालीम भी क्या है, सिंध सरकार उसमें भी धांधली करती है। जरदारी की सरकार ने हर मुल्क में, हर एडमिनिस्ट्रेशन में से जरदारी की सरकार का हाथ है, वहां पर करप्शन हो रही है। कराची में पीने के लिए पानी नहीं है। इसे तो जमात इस्लामी अच्छी पार्टी है कि वो तो अपने लोगों के लिए कुछ कर रही है, वो तो स्कूल्स बना रही है, वो तो स्ट्रीट लाइट्स लगा रही है, वो तो पानी के लिए डगे खोल रही है।
कराची के मेन रोड्स शाहराह फेज और बहुत सारे रोड्स है, वहां पर ट्रैफिक जैम होता है कराची में। कराची में न रूल्स ऑफ लॉ है, कुछ भी नहीं है कराची में। दिन दहाड़े अगर एक बंदे की मौत हो जाती है तो पुलिस भी उसकी परवाह नहीं करती। वो कह रही है कि ये सिंध के जरदारी का सरकार है, जो भी मर्जी करे, कुछ भी नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये ताना दे रहा है कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं गरीबों के लिए घर बनाऊंगा, और वो गरीबों के लिए जाता है, वो गरीबों के साथ जाता है, उसके साथ हमदर्दी करते हैं, बच्चों के साथ फोटो सेशन करता है, लेकिन बच्चों के पाँव में जूते नहीं होते, लेकिन जरदारी के लाडले के पाँव में $1143 के जूते होते। बिलावल साहब के पाँव में जूते तो $1000 के होते, लेकिन जो बच्चे उसके साथ फोटो सेशन में खड़े होते उनके पाँव में एक भी जूता नहीं होता। ये भी जरदारी के सरकार में हो रहा है। जरदारी तो फ्लाइंग किसेस देता है, लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं। जरदारी के पास दुबई में जितने अरब, जरदारी के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो दुबई के जो मलियत है, जो उनके अपार्ट में, वो तकरीबन $12 अरब के, वो तकरीबन $12 बिलियन के। ये भी जरदारी के सरकार में हो रहा है। तो आखिर कब तक कराची इतना बेबस शहर रहेगा? दिन दिहाड़े मौत होती है, स्नेचर से, कारोबार नहीं है, जॉब्स नहीं है, लेकिन जरदारी का सरकार कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ हासिल कर लिया। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? किस तरह कराची वाले लोग इन जरदारी के सरकार से अपने लिए एक रास्ता चुन सकता है? किस तरह कराची वाले, सिंध वाले जरदारी की सरकार का कमर तोड़ सकते हैं? मेन सोल्यूशन कि आपने वोट नहीं देना, कि आपने वोट एक ऐसी जमात को देना है कि वो कराची के लिए काम तो करे, तो वो कराची का तो हो, वो कराची के लोगों के जो बारे में फिक्र करे। ये तो मोहल्लात में बैठे होते, लेकिन कुछ भी नहीं करते। ये लोग अरबों डॉलर का बजट ये पेश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने जाकर FIR दर्ज करना है। अगर आपके इलाके में कोई काम नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ आपने सरकार के पास जाना है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, तो सिंध हाई कोर्ट तक जाना है, जो भी हो आपने जाना है। दूसरा काम आपने ये करना है, सिंध वाले या कराची वाले, कि आपने अपना वोट PPP को नहीं डालना। अगर आपने PPP को वोट डाला तो ये हशर आप लोग को देखना पड़ेगा। तो मेन सोल्यूशन ये कि हमने वोट अच्छी पार्टी को देना है, न कि पीपल्स पार्टी को। अगर पीपल्स पार्टी को हमने वोट दिया तो वो ये हाल पूरे पाकिस्तान का करेगा। कराची में तकरीबन हर माह 4000 से लेकर 10,000 बाइक चोरी होती है। 50 लाख बाइक है कराची में, हर महीने 4,000 से लेकर 10,000 तक बाइक चोरी होती है। एक तो कराची में एक तो बिजली नहीं है, एक तो रोड, और एक तो जॉब्स नहीं है कराची में, तो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग होता है, लेकिन जरदारी की सरकार कुछ भी नहीं करते कराची के लिए। तो आप लोगों ने अच्छे इंसान को वोट डालना है, अच्छे लीडर को। इन छोरों को वोट कभी भी नहीं डालना। एक फेसबुक पर एक फ्रेंच प्रोडक्शन है, उसने कराची में मिडिल क्लास के बारे में एक वीडियोस बनाई है जो कि 100% ट्रुथ है। Shout out to him that they are make that type of content regarding of fear of government. तो कराची का ये बुरा हाल पूरी दुनिया में किसी शहर में नहीं है। एक वक्त पर जो रोशनियों का शहर था, आज वो डकैतों का शहर बन चुका है, आज वो स्नेचर्स का शहर बन चुका है, आज वो जरदारी के सरकार में लपेट आ चुका है। तो हमने करना क्या है? हमने इस जरदारी के सरकार को हमने हटाना है। अगर आप एग्री करते हो मुझसे तो कमेंट में अपने राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।